پی آئی اے کو بڑا دھچکا، یورپ اور برطانیہ کے بعد امریکہ نے بھی فضائی آپریشن پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے کو پابندی سے آگاہ کر دیا۔ پی آئی اے کو حاصل خصوصی پروازوں کا اجازت نامہ بھی منسوخ۔ اعلامیہ کے مطابق پابندی کی بنیادی وجہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے جانا تھا۔ قومی اسمبلی میں عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ کا چرچا، مراد سعید ایوان میں عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کی کاپی لے آئے، پیپلز پارٹی پر خوب الزامات لگائے، بولے عزیر بلوچ نے اعتراف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے کہنے پر اس نے قتل کیے، بھتے کا پیسہ بھی زرداری اور فریال تالپور کو جاتا رہا۔ مراد سعید کی تقریر پر اپوزیشن آگ بگولا، پی پی رکن نصیبہ چنہ نے مراد سعید پر ہیڈ فون ہی اچھال پھینکا۔ قومی اسمبلی میں عزیر بلوچ جے آئی ٹی رپورٹ کا چرچا، مراد سعید ایوان میں عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کی کاپی لے آئے۔ کراچی والوں پر کے الیکٹرک کا عذاب، وزیر اعظم عمران خان نے بجلی کی بندش کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی شہزاد قاسم اور گورنر سندھ کو کے الیکٹرک انتظامیہ سے ملاقات کر کے مسائل کا فوری حل نکالنے کی ہدایت۔ نیپرا نے بھی اصل حقائق جاننے کے لیے عوامی سماعت کا فیصلہ کیا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر عوامی نمائندوں کا بھی میٹر گھوم گیا۔ قومی اسمبلی کے ٹھنڈے ٹھار ایوان میں عوامی نمائندوں کی گرما گرمی، پیپلز پارٹی ارکان اور وزیر توانائی عمر ایوب میں سخت جملوں کا تبادلہ، اسلم خان اور خواتین ارکان میں بھی خوب تو تو میں ہوئی۔ متحدہ نے منگل کو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور زائد بلوں کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں، کل شہر کے 100 مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے اور ہفتے کو شارع فیصل پر دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کا اہم ترین مسئلہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ہے۔ حکومت کا 15 ستمبر سے یونیورسٹی سمیت تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا مشروط اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں اگست کے تیسرے ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ادارے نہیں کھولیں گے۔ تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز بھی جاری کریں گے۔ عوام نے بقرعید پر احتیاط نہ کی تو کرونا پھر پھیل سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر خبردار کر دیا، کہا عید الفطر پر لاپرواہی سے وائرس تیزی سے پھیلا، عوام عید الاضحیٰ پر احتیاطی تدابیر نظر انداز نہ کریں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں آئسولیشن اسپتال اور وبائی امراض کے مرکز کا بھی افتتاح کر دیا۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 3,359 کیسز سامنے آ گئے، مریضوں کی تعداد 2,40,848 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 61 افراد جان سے گئے، اموات بڑھ کر 4,983 ہو گئیں، 1,45,000 سے زائد افراد صحت یاب۔ حکومت کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے اپوزیشن اے پی سی کی تیاریوں میں مصروف۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں خواجہ آصف نے بتایا جلد تاریخ طے کر لیں گے۔ اے پی سی میں اگلے لاہے عمل کا تعین ہوگا، عدم اعتماد کی تحریک پر بھی بات ہوگی۔ ایم کیو ایم سے متعلق بولے متحدہ تو سب کی اتحادی رہی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، ابھی معاملہ کچا ہے، حکومت کی کارکردگی ہی اس کی تباہی کا باعث بنے گی۔ جے یو آئی فے نے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا 2018 کے انتخابات فراڈ تھے، موجودہ حکومت تبدیلی نہیں تباہی لائی ہے، اپوزیشن ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پیٹرول کا بحران کیسے ہوا، ذمہ دار کون، لاہور ہائی کورٹ نے تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کسی نے سرکاری ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ بحران میں کچھ بڑے بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی بھی سرزنش کر دی۔ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ، تاجر تنظیمیں مطالبات کے حق میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج پر اکٹھی ہو گئیں۔ 18 جولائی کو تحریک شروع کرنے کا اعلان، تاجر رہنما کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی، عوام رل رہے ہیں۔ 18 جولائی کو قافلے اسلام آباد روانہ ہوں گے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے گاڑیوں کے ہارن بجا کر حکمرانوں کو جگائیں گے۔
पाकिस्तान में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 800 रुपये इजाफे से 1,09,100 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 686 रुपये इजाफे से 93,536 रुपये का हो गया। खातों पर अलॉट करने का इल्जाम है। चेयरमैन एंटी करप्शन ने डिप्टी डायरेक्टर गरबी को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस सिलसिले में? देखिए, ये मामला खासे अरसे से चल रहा था। इस सिलसिले में एमडीए ने भी खतूत लिखे थे। अब साबिक डीसी गरबी फैयाज आलम पर कई अरब रुपए की मालियत की जमीन और जाली खातों पर अलॉट करने का इल्जाम जो है वो तकरीबन साबित हो गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट जो है कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और वजीर आला चीफ सेक्रेटरी को पेश की गई थी। चेयरमैन एंटी करप्शन ने स्कीम के 45 में से कब्जा माफिया की सहूलत पर जो है स्कीम 45 में जो कब्जा माफिया के पास सहूलत की गई थी उसमें साबिक डीसी ने सारी सहूलत दी थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ भी इस सिलसिले में इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी इनके साथ मिलकर ये काम करवाया है और साबिक डीसी पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुतासिरीन के फंड खुर्बुद करने का भी इल्जाम है। तो इस तरह कई हवालों से इसकी तहकीकात हो रही है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी मुतवक्को है। एंटी करप्शन ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके चीफ सेक्रेटरी को पहुंचा दी है। अब देखते हैं कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। खासे अरसे से उनकी निगरानी भी की जा रही थी। कई लोगों के सरकारी अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए गए और ये बड़ी जमीनों में खुर्दबुर्द थी इस इलाके में। साबिक डीसी गरबी फैयाज आलम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे थे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। वापडा टाउन में सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, इन अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, क्या सूरत हाल बन रही है? इब्तदाई तौर पर लोगों का रद्द अमल क्या है? जी, पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तो इस हवाले से बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 12 बजे से 24 जुलाई तक लागू रहेगा, जिसमें लाहौर में अगर बात की जाए तो A2 ब्लॉक टाउनशिप, EME सोसाइटी, चुंगी, अमर सद्दू का बाजार से मुल्हिका इलाका बंद रहेगा। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम, वापडा टाउन, जौहर टाउन, सी ब्लॉक और ग्रीन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। फैसलाबाद में वारिसपुरा, चौक डी टाइप कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, इलामा इकबाल कॉलोनी, रजाबाद, रजा गार्डन बंद रहेंगे। इसके अलावा ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ कॉलोनी और कमर्शियल और रिहायशी इलाकों को भी बंद किया जाएगा। लाहौर के जो मजीद इलाके बंद किए जाएंगे उसमें मुस्लिम टाउन बी ब्लॉक, मुस्लिम टाउन आई मदीना टाउन और इसके अलावा जरावाला में लाहौर रोड से मुल्हिका तमाम गलियां और नया बाजार, मेन बाजार और बाबा शमूल, सुल्तानपुरा और न्यू शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें गुजरांवाला के इलाकों में वापडा टाउन, पीपल्स कॉलोनी, जी ब्लॉक में लॉकडाउन किया जाएगा। मुल्तान में अगर बात की जाए तो मुल्तान में सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड कॉलोनी, पीपरम, गालिब रोड, चोर, बनास्पति, मुल्जिम कस्टम ऑफिस और इसके अलावा सियालकोट में भी दीगर जो इलाके हैं जिनमें शहाबपुरा है, मुजफ्फरपुरा है और दीगर इलाके बंद किए जाएंगे। और अगर जो रावलपिंडी है इसके इलाकों में भी डोकी, काबा, गुलिस्तान कॉलोनी, एरिया लाइन 4, PIE कॉलोनी और इसके अलावा दीगर जो जगहों पर लॉकडाउन किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन करने का मकसद ज्यादा केसेस वाले इलाकों से लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है। आपके 7 बड़े शहरों के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह बताई गई है कि फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल तारिक। और अभी आपको बताएं, PIA को बड़ा धचका। यूरोप और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी फ़ज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA को पाबंदी से आगाह कर दिया। PIA को हासिल खुसूसी परवाज़ों का इजाज़तनामा भी मनसूख। इलामिया के मुताबिक पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन
इंटरनेशनली सतह पर मजाक बन गई। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस ने कौमी एयरलाइन की जग हसाई करा दी। यूरोप और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी अपने फजाई दरवाजे PIA के लिए बंद कर दिए। PIA को हासिल खुसूसी परवाजों का इजाजत नामा भी मंसूख कर दिया गया। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA को पाबंदी से आगाह कर दिया है। एलामिया के मुताबिक पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। कौमी असेंबली इजलास में उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट का चर्चा। वफाकी वजीर मुराद सईद ऐवान में उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान की कॉपी ले आए। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बारिश कर दी। बोले उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि उसने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के कहने पर कत्ल किए भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को दिया। कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है। बहस क्या है कि जो सिंध हुकूमत की तरफ से JIT है वो ठीक है, या अली जैदी की तरफ से जो JIT कौम के सामने रखी गई और उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस हुई, वो JIT ठीक है। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बत्ताखोरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया, वो वजाहत हुई। मैं जो एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का उज़ैर बलोच का, इसके ऊपर न इनको एतराज है न इनको एतराज है। स्पीकर साहब अड्डू की सरपरस्ती की, बत्ता उसूल के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उज़ैर बलोच को। मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के रुकन नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन उछाल दिया जो मुराद सईद को नहीं लगा। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट भी किया। जी मुराद सईद साहब, उनको दिया पूरा, किसी ने दरमियान में नहीं बोला, मौका दिया। और अब बात कर लेते हैं कराची में लोड शेडिंग की। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आजम का नोटिस। कराची के शहरियों को दरपेश मसले का फौरी हल निकालने की हिदायत कर दी। वजीर आजम से गवर्नर सिंध ने मुलाकात की जिसमें के इलेक्ट्रिक के मामलात पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने कराची में बिजली के बहरान पर नोटिस लेते हुए असद उमर, शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध को के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने कहा है कि मसले का हल फौरी निकाला जाए। कराची और के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार किसकी? इजाफी बिजली के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की गई? वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली मुआहदे पर इजाफी दे रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची के मसाइल का हल अपने जिम्मे ले लिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा सवाल गंदुम और जवाब चने का मतलब समझ आ गया। हुकूमत के पास सिर्फ इल्ज़ामात हैं, मसाइल का हल नहीं। के इलेक्ट्रिक के मामले पर कौमी असम्बली में भरपूर हंगामा रही। असलम खान और ख़वातीन अरकान में तू मैं हुई। MQM अरकान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मंगल को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन परफॉर्मेंस पर कौमी असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली मुआहदे से इजाफी दे रहे हैं। कराची में बारिश का पानी खड़ा होने से अमवात होती हैं। अभी जो मानसून की बारिशें